اور اب خبریں تفصیل سے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے جنوبی گزشتہ 2 جگہوں پر ہوئے دھماکوں کے سلسلے میں کیے گئے سوالوں کے جواب میں کہا کہ انہیں دھماکوں کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ اس کی تہہ تک پہنچنا سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کام ہے۔ بڑھتی شدت پسندی پر کیے گئے سوال کے جواب میں فاروق عبداللہ نے سوال کیا کہ ہمیں کون بانٹ رہا ہے؟ ہمیں تقسیم کرنے والا ہی شدت پسندی کو ہوا دے رہا ہے۔ I have no idea about the blast. This is a problem. Only the security and the intelligence people can now find out what is the reason for the blast. تو سر ریڈیکلائزیشن بڑھ رہا ہے سر آپ کو لگتا ہے؟ ریڈیکلائزیشن کن نے بڑھایا بتائیے مجھے؟ کون اور مسلم میں الگ بات کر رہا ہے؟ کون یہ کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ الگ الگ ہیں؟ کون؟ وہی تو ریڈیکلائزیشن کر رہے ہیں۔ سر اٹیک آن دا سینٹرل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ میں کسی کی بات نہیں کرتا ہوں، آپ یہ خود سوچیے کون ہمیں ڈیوائیڈ کر رہا ہے؟ کیا ہم لوگ الگ ہیں؟ ہم سب ہندوستانی ہیں، ہم سب دیش واسی ہیں، تو پھر کون کر رہا ہے؟ دیکھیے جہاں تک چناو ہے اس کا تو کچھ پتہ نہیں ہے کب ہوگا، مگر میرا فرض ہے اس علاقے میں بھی آنے کا، یہاں لوگوں سے بات کرنے کا، لوگوں کی مشکلات کو دیکھنے کا اور اس کو ابھارنے کا پارلیمنٹ کے اندر، کیونکہ پارلیمنٹ ممبر کا ایک فرض ہے کہ وہ آج کل ہم سینٹرل گورنمنٹ کے اندر ہیں کہ ان کے سامنے یہ باتیں لائیں کہ ہماری حالت کیا ہے۔ اب جیسے باقی اسٹیٹس میں چناؤ ہوئے ہیں، جموں کشمیر میں ابھی چناؤ جو ہے ان گھوشت نہیں کیے گئے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے یہ تو اب ان کا الیکشن کمیشن اور گورنمنٹ آف انڈیا کا ہے کہ وہ کب الیکشن کریں گے۔ ابھی جس طرح سے حالات ہیں کشمیر ویلی میں، ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز ہائیبرڈ ٹیررسٹ پکڑے جاتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں پورا جو سینیریو ہے کشمیر ویلی میں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ریڈیکلائزیشن ایک بار پھر ہوئی ہے؟ ریڈیکلائزیشن میں نہیں مانتا، There's nothing like radicalization. Fighting a low intensity war. There is no other way. کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا سولوشن ہو سکتا ہے اس طرح کی جو سچویشن ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ ایک وار جیسی سچویشن ہے، اب کیا لگتا ہے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے میں اس بات کا تو بہت خوشی ہے کہ ہم لوگ اس سال G20 کی پریزیڈنٹشپ انڈیا کو ملی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں ہندوستان پہ بہت بوجھ ہے سارے ان کنٹریز کا، اور میں امید کرتا ہوں کہ وزیر اعظم اس میں سکسیسفل ہو، یہ جو یوکرین کا وار ہو رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ اس نے ہماری حالت ساری دنیا کی ختم کر دی، اکنامک کنڈیشنز بہت بری ہو رہی ہیں، اور اس کو ختم کرنے کے لیے G20 کا میں پریزیڈنٹشپ لینا اچھا ہوگا اگر ہم اس کو دور کر سکیں۔ دوسرا جو ہے ہمارے جو مشکلات ہمارے نیبر کے ساتھ ہیں اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ملک جو ہے مل کے اس کا کوئی حل نکالیں گے اور یہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گی ہماری مشکلات ہمارے وطن کے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ بات ہونی چاہیے؟ دیکھیے میں جب کہتا ہوں کہ پاکستان سے بات چیت کرو تو آپ جانتے ہیں کہ کریں گے، ان سے نہیں بات کریں گے۔ لڑائی تو ان سے ہے، لڑائی تو بچوں سے تھوڑی ہے، اور میں جب کہتا ہوں تو وہ کہتے ہیں یہ دیش دروہی ہے، تو اس سے میں اب تھک گیا یہ کہتے کہتے بات کرو، ایک دن تو کرنی پڑے گی ان کو، وہ کیسے کریں گے وہ میں نہیں جانتا۔ نیشنل کانفرنس میں جو الیکشنز ہو رہے ہیں، کیا فاروق عبداللہ پریزیڈنٹشپ کے لیے الیکشن لڑیں گے؟ کون سے پریزیڈنٹشپ کا؟ پارٹی پریزیڈنٹ۔ دیکھیے وہ جب نامینیشنز فل ہوں گے اس وقت پتہ لگے گا کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے۔ آپ کر رہے ہیں کس چیز کے لیے وہ آپ کو پتہ لگے گا اس دن۔ کانگریس پارٹی کے سربراہ وقار رسول وانی نے ہندواڑہ میں پارٹی کنونشن میں خطاب کیا پر تنقید کی اور کہا کہ بی جے پی نے جموں کشمیر میں اپنی مرضی کی سرکار چلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی لوگوں پر ظلم کر کے انہیں تباہ برباد کر رہی ہے۔ جموں کشمیر میں عوامی نمائندگی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پریشان حال ہیں۔ وقار رسول نے کہا کہ مرکز کو فوری طور پر جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ واپس کرنا چاہیے اور فوری طور پر جموں کشمیر میں انتخابات کروانے چاہیے۔ کنونشن میں لوگوں اور کارکنان کی خاصی تعداد نے شرکت کی۔ گجرات سے حکومت چلانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو یہاں کی حکومت چاہیے اور ہمیں اسٹیٹ واپس چاہیے۔ ہمارے جو مہاراجہ نے ہمیں اسٹیٹ سبجیکٹ دیا تھا تو ختم کیا سازش کے تحت۔ اسٹیٹ سبجیکٹ سے ہماری زمینوں کا تحفظ تھا، اسٹیٹ سبجیکٹ سے ہماری نوکری کا تحفظ تھا، اسٹیٹ سبجیکٹ سے ہماری ووٹ کا تحفظ تھا۔ آج چیف الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ 25 لاکھ ووٹ جو ہیں وہ باہر سے
हम ला रहे हैं, बाहर वाले डाल रहे हैं। तो जो अखबार ने रिपोर्ट दी, सर्वे रिपोर्ट, उसके मुताबिक आजकल 12 से 13 लाख वोट अभी तक वो बाहर के ऐड कर चुके हैं। तो इस स्टेट को बीजेपी तबाह और बर्बाद करने के चक्कर में है, और हम उस बीजेपी को ऐसा करने नहीं देंगे। हम ये डिमांड करेंगे इमीडिएटली स्टेट को वापस दिया जाए, स्पेशल स्टेटस को वापस दिया जाए, तो स्टेट सब्जेक्ट है उसको बहाल किया जाए। बादशाह सलामत होते थे, इसी तरह से आजकल बादशाह सलामत हैं, जो 10 साल से 9 साल से हैं। कोई इलेक्शन नहीं है, लोग परेशान हैं, लोगों के काम नहीं होते हैं। और परसों गवर्नमेंट ने जो है फैसला लिया, जो बिजली का बिल नहीं भरेगा उसको जेल में डालो, FIR दो। मैं ये डिमांड करूंगा कि जिसने बिजली का बिल के पैसे नहीं है, जो BPL है, उसका बिजली बिल माफ किया जाए। ये हमारा सवाल है गवर्नमेंट से। इसलिए यहाँ जल्दी स्टेट का दर्जा वापस दिया जाए, इलेक्शन हो, और जो बेगुनाह जेलों में है उनको छोड़ा जाए। शुक्रिया। सकीना खातून ने कहा कि सरकार बेरोजगारी, महंगाई पर काबू पाने में नाकाम साबित हुई है। उन्होंने कहा कि लोग अवामी नुमाइंदगी के हक में हैं। सरकार को जम्मू कश्मीर में जल्द इंतखाबी अमल शुरू करना चाहिए। चमर दमहाल हाजीपुरा में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान सकीना खातून ने इन बातों का इजहार किया। कन्वेंशन में सीनियर लीडरान के अलावा वर्करों की खासी तादाद ने शिरकत की। अजमेर आने का आज मकसद ये था कि यहाँ के लोगों के साथ इंटरेक्शन करना, इनके मुश्किलात को सुनना, चाहे वो महंगाई का मसला हो, चाहे वो बेरोज़गारी का मसला हो, चाहे वो बिजली का बहरान हो, चाहे सरकार जो आजकल बड़े बड़े दावे कर रही हैं बैक टू विलेज, वो सारे नाकाम हो चुके हैं। लोगों को किसी भी तरह की कोई भी सहूलियत फराहम इस सरकार ने नहीं की, और यहाँ जो लोग रो रहे हैं, परेशान हैं, बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो इसीलिए आज यहाँ चंबेर में आके मैंने लोगों से बात की है, और लोग चाहते हैं कि उनको अपना हक़ जो है वो दिया जाए, ताकि वो अपने हक़ से कोई उनका सुनने वाला जो है उसको खड़ा करे और उनकी बात जो है वो आगे तक पहुँच सके। वाल्मीकि समाज ने जम्मू के वाल्मीकि समाज को दर्जे फहरिस्त ज़ात का दर्जा देने की मरकजी हुकूमत की तजवीज़ का खैर मकदम किया। न्यूज़ वाल्मीकि समाज के नुमाइंदों ने कहा कि इससे कबल उन्होंने GD शर्मा की सदारत में समाजी व इक़्तिसादी तौर पर पसमानदा तबक़ात की नुमाइंदगी और सिफारिशात दी थी। उनका मज़ीद कहना था कि ये एक काबिल ज़िक्र कदम है। बिल्कुल, ये बड़ा स्वागत योग्य कदम है गवर्नमेंट का। जैसा कि हमने 2020 में ये जो GD शर्मा जी की अध्यक्षता में सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड्स क्लासेस का जो उनकी अध्यक्षता में कमीशन बैठा था, तो उसके तहत हमने एक प्रेजेंटेशन दी थी। तो उसके ऊपर अगर ये काम हो रहा है तो उससे वाल्मीकि समाज को बड़ा फ़ायदा होने वाला है कि जैसे धारा 370 के पहले वाल्मीकि समाज गंदगी ढोने को, मैला ढोने को विवश था और उसको विवश किया जाता था। उसका पढ़ा लिखा वर्ग जो MA, BA, MSc, यहाँ तक कि PhD स्कॉलर भी था, उसको भी यहाँ झाड़ू लगाने के लिए वादे किया जाता था। तो ऐसी वो दूरदशा अब हमें वो सहन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि धारा 370 और 35A को एब्रोगेशन के बाद समाज में जो सुधार आया है वो श्री माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, और जो हमारी UT गवर्नमेंट है उनकी वजह से ही आया है, क्योंकि उन्होंने इस दुख दर्द को जाना है और इसके गहनता से इस पे काम करना शुरू किया है। जैसा कि 2020 में डोमिसाइल राइट्स हमें प्रोवाइड किए गए। हमारा पूरा समाज अब डोमिसाइल है यहाँ का, यहाँ नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है। और उसके बाद अभी 2-4 महीने पहले हमें वोटिंग राइट्स दिए गए हैं। तो धीरे धीरे जो वाल्मीकि समाज को सशक्त किया जा रहा है, सराहना करते हैं। और इसके बाद जो हमें SC स्टेटस देने जा रही है गवर्नमेंट, और इस पे काम शुरू हो गया है, तो ये बड़ा स्वागत योग्य कदम है। हम इसकी सराहना करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ये जो सरकार का भी फैसला जो अभी कुछ दिनों में हमें लग रहा है कि आने वाला है कि हमें सरकार SC की सूची में शामिल करने जा रही है, तो ये बहुत स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि हमारी काफ़ी लंबे अरसे से ये मांग रही थी कि हमें SC की श्रेणी में शामिल किया जाए, जो कि पहले नहीं किया जाता था।
تو اس لیے ہمیں کافی بینیفٹ ہونے والا ہے، خاص کر کے پڑھے لکھے ورگ کو، کہ ان کو ریزرویشن ملے گی، ان کو نوکریوں میں کافی بینیفٹ ہوگا، تو ہمیں کافی اس سے فائدہ ہونے والا ہے۔ سرکار کی طرف سے یہ ہم کو مدد ملتی ہے تو ہم سرکار کا دھنیہ واد کرتے ہیں کہ شیڈول کاسٹ کا ہمارے بچوں کا جو آگے بھوشیہ ہے وہ اچھا ہوگا، ان کو کوئی نوکری ملے گی، کوئی جاب ملے گی، ان کو لون ملے گا، کوئی اچھا سرکار کا دھنیہ واد کرتے ہیں ہم۔ مختلف کشمیری پنڈت تنظیموں کے لیڈروں نے آج کشمیری مائیگرنٹ کمیونٹی کو درپیش سلگتے مسائل کو حل کرنے کے لیے مشترکہ جدوجہد کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ آج جموں میں پی ایم پیکج امپلائیز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ایک روزہ کنونشن کے دوران لیا گیا۔ کنونشن میں قرارداد منظور کی گئی، حکم کیا گیا کہ وہ تمام پی ایم پیکج ملازمین کو وادی کشمیر سے جموں منتقل کریں جب تک کہ وادی میں حالات مکمل طور پر معمول پر نہیں آ جاتے۔ ٹارگٹ کلنگ کے رجحان کو روکا نہیں جاتا۔ پی ایم پیکج ملازمین نے اس بات کا اعادہ کیا کہ اگر حکومت ان کے طویل مدتی مطالبات کو پورا کرنے میں ناکام رہتی ہے تو احتجاج میں شدید شدت لائی جائے گی۔ امپلائیز ہیں ان سے بات کروں گا کہ انہوں نے جو آرگنائزرز ہیں انہوں نے یہ جو آج آرگنائز کیا، کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام لکی موتی ہے۔ لکی جی، آج آپ نے سبھی کو بلایا تھا، کیا مدعا تھا، کیوں آپ نے ان سبھی کو آج پارٹی جو لیڈران ہیں ان کو بلایا؟ بالکل، دیکھیے جو لگاتار جو ہم پردرشن کر رہے ہیں ایک ہی ڈیمانڈ کو لے کے، تو جو آج کا ہمارا جو کنونشن رکھا ہے ہم نے ون ڈے کنونشن، اس میں ہم نے جتنے بھی کشمیری پنڈت لیڈرز ہیں، چاہے پولیٹیکل نان پولیٹیکل یا سوشل ایکٹیوسٹ جتنے بھی ہیں، ان سب کو ہم نے ایک ہی پلیٹ فارم پہ لایا اور ان کے تھرو جو انہوں نے بھی اس چیز کو سمرتھن کیا کہ جو آپ کی ڈیمانڈ ہے بالکل جینوئن ڈیمانڈ ہے۔ کشمیر گھاٹی کے حالات جو ہے اس سمے وہ ایسے نہیں ہیں کہ وہاں پہ ہم اپنی سیوائیں دے سکیں، تو ان کی طرف سے بھی ہمیں سپورٹ ملا اور ہم نے ان کو بھی کہا کہ آپ بھی ہمیں مارگ درشن کیجئے کہ ہمیں آگے کس طریقے سے یہ اسٹرگل کو آگے کس طریقے سے لے جانا ہے۔ تو آج ہم سب مل کے ایک منتھن ہے، یہ ایک کنونشن کے طور پر منتھن ہے، جو اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہونی چاہیے، اور یہ ہمیں مارگ درشک کے روپ میں آج یہ آئے ہمارے پاس اور ہماری ڈیمانڈ کو انہوں نے ایک جسٹیفائڈ ڈیمانڈ مانا اور اس پہ یہ بھی اپنا کچھ جو بھی ان کا ہے وہ یہ دے رہے ہیں۔ آج اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اب اس سندربھ میں اس سے زیادہ ہم لوگ پیشنس رکھنا ہمارے لیے مشکل ہو گئی ہے۔ 6 مہینے ہو گئے ہیں ہمارے بچوں کو وہاں سے یہاں آئے ہوئے اور ان کی تنخواہیں ریلیز نہیں ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ایک ہیومینیٹیرین مسئلہ بن گیا ہے، کیونکہ ان کے ڈے ٹو ڈے لیونگ کا کیا ہوگا، ان کے بچوں کا کیا ہوگا، ان کے بزرگوں کا کیا ہوگا، اس چیز کا سنگیان لیتے ہوئے ہم اپیل کرتے ہیں آنریبل گورنر صاحب سے کہ امیڈیٹلی ان کی سیلریز جو ہیں وہ ریلیز کر دیں۔ ہمارے ایل جی صاحب جو جے کے یو ٹی میں جو ہے یہ سکشم ہے، یہ ایسے بولڈ ڈیسیژن لینے میں، چونکہ ہم نے دیکھا اور کام کرنے کا ان کا تجربہ ہے اور سینئر بھی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ خیر اگر ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ کافی بزی رہتے ہیں، لیکن جو ہمارے ہوم منسٹر امت شاہ جی جو ہیں، اور ہمیں امید تھی کہ کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ، جب ان کا 3 دن کا دورہ جو تھا کشمیر اور جموں میں، ان بچوں کی جو یہ سافٹ ٹارگیٹنگ کشمیر میں 89 اور 90 کے بعد جو پھر دوبارہ شروع ہوئی، کیونکہ 12 سال تو انہوں نے کبھی یہ چیز مانگی نہیں اور نہ یہ کبھی جموں آئے، کیونکہ جیسے آپ لوگوں نے ان کی سروس لی اور کشمیر میں لی تو یہ کشمیر میں ہی تھے، لیکن یہ حالات اگر بنے تو کیوں بنے۔ کیمرامین نارائن کے ساتھ میں سمیر بٹ، نیوز 18 جموں۔ بڈگام کے پتلے باغ علاقے کے منظور احمد کی بیوی نے ایک لڑکے کو جنم دیا، تاہم 12 دنوں کے بعد ڈاکٹر نے منظور کو ایک لاش سونپتے ہوئے کہا کہ ان کا بچہ مر چکا ہے۔ منظور جب غور کرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ بچہ کا نہیں لڑکی ہے۔ کیا ہے پوری سٹوری، دیکھیے یہ خاص رپورٹ۔ نومبر کو بڈگام کے پتلی باغ علاقے کے منظور احمد کی بیوی نے ایک بچے کو جنم دیا۔ منظور کے مطابق ڈاکٹروں نے انہیں اطلاع دی کہ وہ باپ بن گیا ہے اور منظور لڑکے کا سامان وارڈ میں پہنچاتا ہے۔ 15 نومبر تک منظور کو یہی معلوم تھا کہ اس کی بیوی نے بیٹے کا جنم دیا ہے، مگر 15 نومبر کو ڈاکٹر منظور کو ایک لاش سونپتے ہیں کہ ان کا بچہ مر چکا ہے۔ منظور جب غور کرتا ہے اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ بچہ لڑکا نہیں لڑکی ہے۔
मंजूर परेशान हो गया और अस्पताल इंतजामिया से शिकायत की कि अगर उसका लड़का पैदा हुआ था तो फिर लड़की क्यों मिली, वो भी मुर्दा। मामला तूल पकड़ता गया और अब इंतजामिया ने आज डीएनए सैंपल लेने के लिए बच्ची को कब्र से निकाला। मंजूर का कहना है कि उसे इंसाफ मिलना चाहिए। 3 नवंबर डिलीवरी गसान तमिस नबर कत वन डॉक्टर दपान अमिस जा लड़का तम पे हर मे खलान तौर पलो त वार्ड 7 मज तत डायपर मतलब अमिस खुलान तत बचस अमिस जा लड़का तम पे पलो अमिस रटान पे पलो वलो दिवान तम पे नान 15 दोन दुतुक टोटल अंदर आसन कहें बचस नश अकिस रातस अमिस दुध दितमुत सह नबर कन बनान दुध पे निवान बोतल नम हर कंस दिवान तौर अंदर आसन मतलब मे वो नम 2-4 लट वुचान बच तुलो फोटो तुक पे फोन अत मज दुतुक पाने अंदर फोटो तुल दुप ये तुंद बच यपर पाने लेखान कागदन मतलब डॉक्टर सोब दपान यह मेल यानी कि लड़का एक दो सुबह गोस बह मे दफन वफन कर पे गोस बह लक्च गाड़ मज तौर तत खोस बह वार्ड 7 मज मे वो डॉक्टर लड़का तुह क्या दिु लड़की सो 12 बजे रात तो नमज कर मे डिस्चार्ज खानदार अत सह डॉक्टर सोबन टित रुटुक सैंपल रोटुक सोन वन कि नमो दोप तौर रिपोर्ट तम पे रटो तुंद सैंपल। वही मंजूर के अहले खाना का भी यही कहना है कि वो खुशी से सरशार थे कि उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ है। मंजूर की बीवी के भाई का कहना है कि उन्होंने अपनी आंखों से बच्चे को देखा था और वो लड़का ही था। उनका कहना था कि बच्चा बीमार था और उसे आईसीयू में रखा गया था और उसके बाद फिर अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। तुमो खोल से हेर कलान तमिस खोतस तमिस पत तो ये सह मशीन पे खोलुक तो डॉक्टर साहब वो तक दोपन खल डायपर खोल मे डायपर हेर तो पत लग तमिस डायपर मे थी पत वोन अनसा कमल तो बे अन पलव खोल मे पलव तो कमल तो हेर दोमे अहन लड़का मे वुच पन्ने वुचो। मंजूर की वालदा और उसकी बहन इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। उनका कहना है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों हुई, यहाँ तक कि कागजात पर भी साफ लिखा गया है कि लड़का हुआ है, तो फिर उन्हें लड़की की लाश क्यों सौंपी गई। चीजामस की बच्चे अमे सा डेड बॉडी ये सा गुजरान बहुत वन तुम पे इंसाफ मे अकु लड़क मे जायो अमिस लड़क अमिस तुम जैसी हस्पताल 3 बज मे बड़ सर्जरी मे अंदर नान दपान नबर कन मीस खानदारस तुह क्या जुवो मेन बई क्या डॉक्टरन कोर्मुत अंदर अकिस मिनटस त्रोक ना अंदर कहें यह कस इंसाफ दपक इंसाफ करो हर कस वन इंसाफ करो। पुतलीबाग बड़गाम का मंजूर अहमद जो ये दावा कर रहा है कि 3 नवंबर को जब उनकी बीवी की डिलीवरी तो इत्तला दी थी कि उन्हें लड़का पैदा हुआ है। उसके बाद 15 नवंबर का दिन है। 15 नवंबर को मंजूर को अस्पताल इंतजामिया की जानिब से एक बच्ची दी जाती है, वो भी मुर्दा। तो मंजूर कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। मंजूर का कहना है कि अगर आज तक इन्हें अस्पताल इंतजामिया कह रही थी कि ये लड़का है, तो अचानक उनकी बेटी वो भी मुर्दा हालत में कैसे इन्हें दी गई। मामला उछला, इन्होंने जो है शिकायत दर्ज की, उस शिकायत पर कार्रवाई हुई। यहाँ पर आज जो मेडिकल टीम है वो आई, उन्होंने डीएनए टेस्ट के लिए यहाँ पर सैंपल लिए। अब यहाँ पर जो मंजूर की फैमिली है वो इंसाफ की गुहार लगा रही है। तो अब ये पता चलेगा कि जो ये दावा कर रहे हैं वो सच है या अस्पताल इंतजामिया जो कह रही है वो सच है। फिलहाल जो यहाँ की फैमिली है, इनकी फैमिली मंजूर की, वो यही मुतालबा कर रही है, वो इंसाफ की ही गुहार लगा रही है। तो अब आने वाले वक्त में पता चलेगा, जब डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट आएगा तो ये पता चलेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। न्यूज़ 18 के लिए बड़गाम से मैं आबिद हुसैन। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने आज उड़ी के चंदनवाड़ी में जामा मस्जिद और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड वक्फ अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ का खास ध्यान रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि बोर्ड की तरजीहात में शामिल है कि वक्फ की जहां जहां जायदाद है, अगर वो खस्ता हाली का शिकार है तो उन्हें असर तामीर किया जाए। यहाँ पे जो उड़ी चंदनवाड़ी ये सेंटर बाजार है, यहाँ पे हमारा शॉपिंग है कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है।
जो नए सिरे से तामीर करना है। यहाँ पे मस्जिद शरीफ है जो अभी बहुत पुरानी हो चुकी है, उसके तामीर के लिए यहाँ की कमेटी हमारे पास आई थी, यहाँ के लोग आए थे। यहाँ ताज साहब हैं जो एक्स मिनिस्टर भी रहे हैं ऑनरेबल हमारे, तो उनके कहने पे भी उन्होंने हमें कहा था कि यहाँ पे आइए, और हमारा वक्फ का काम है, जिम्मेदारी दी गई है, हम वक्फ के केयर टेकर्स हैं, हमें देखना है वक्फ की कहाँ कहाँ जायदाद है, वहाँ पे हमें पहुँचना है और उसको असर नौ जहाँ जहाँ लगेगा खस्ता हाली है उसको असर नौ तमीर करना है। और लोगों बहुत ताउन है वक्फ के साथ और दिल खोल के सारे, यहाँ पे मैंने कुछ नौजवानों को देखा जो दिल खोल के सामने आ रहे हैं, जो बुज़ुर्ग हमारे हैं, सारे जितने भी लोग हैं, सबों ने कहा कि हम तरक्की और तामीर और तरक्की में अब वक्फ के साथ साथ हैं। इंशाअल्लाह रहमान आपके सामने वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो हम नए सिरे से करना चाहते हैं। जिला बारामूला के कुंजर पुलिस ने चोरों के एक गिरोह का पर्दाफाश किया। लाखों रुपए मालियत का साजो सामान चोरों से बरामद हुआ है। 2 चोर भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एसडीपीओ टंगमर्ग हिलाल खालिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये चोर कुछ अरसे से इलाके में सरगर्म थे और उन्होंने गाड़ियों के साथ साथ दीगर साजो सामान की चोरी की। पुलिस स्टेशन कुंजर ने के हुदूद में माजी करीब में नकबजनी और गाड़ी चोरी की कुछ वारदातें हुई, जिनके बारे में पहले ही कई केस दर्ज किए जा चुके हैं। पुलिस ने तकनीकी और इंसानी वसाइल की मदद से इन मुकदमात की तफ्तीश के दौरान कुछ मुश्तबा अफराद के नाम सामने लाए हैं, जिनमें से एक छानपुरा टंगमर्ग का अब्दुल मजीद लोन था, जो टंगमर्ग इलाके का एक बदनाम ज़माना चोर था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी से बचने के लिए वो अपना घर छोड़कर मुख्तलिफ मकामात पर रूपोश था। पुलिस को जो ही गुलाबदरी इलाके में उसकी नक्ल हरकत के बारे में पुलिस ने तेज कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। मुकम्मल पूछगछ के बाद उसने इंकशाफ किया कि वो और एक और शख्स गुंडहसी भट्ट के बशारत अहमद भट्ट चोरी और डकैती की इन वारदातों में मुलविस हैं, जिन्हें उसी दिन गिरफ्तार भी किया गया। दोनों ने मजीद इंकशाफ किया कि अपने जुर्म को छुपाने और चोरी शुदा माल को बेनकाब किए बगैर ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने पटन के इलाके मीरगुंड क्रॉसिंग पर एक वर्कशॉप खोल रखी है, जहां उन्होंने चोरी शुदा गाड़ियों को पुर्जों में तकसीम किया और इंजनों को तोड़ते थे। चोरी शुदा अमलाक में लाखों रुपए का तांबा भी बरामद हुआ है। इस मामले में मजीद गिरफ्तारियां साल के दौरान हमारे टंगमर्ग सब डिवीज़न में चोरियों का सिलसिला बढ़ गया था, जिसमें गाड़ियों की चोरियां, बाइक्स की, तांबे की दुकानों की और स्पेयर पार्ट्स की जो शॉप्स हैं यहाँ पे, उनकी चोरियां यहाँ पे हुई थी। इस ज़िम्न में पुलिस स्टेशन कुंजर ने 2 बंदों को अरेस्ट किया है, एक अब्दुल मजीद और एक बशारत अहमद। तो उनसे हमने तकरीबन 4-5 लाख का सामान बरामद किया है। इन्होंने क्या मोडस ऑपरेंडी इख्तियार किया था कि ये यहाँ से गाड़ी चोरी करते थे और दिवर मिरगुंड क्रॉसिंग पे इन्होंने एक टेम्परेरी वर्कशॉप बनाया था। वहाँ पर ये पूरी गाड़ियों को सेटल करते, पूरा सामान निकालते थे, उसको एज सेकंड हैंड पार्ट्स भी बेचते थे और कुछ नया सामान भी रखा था जो ये वहाँ पे बेच रहे थे। तो इस ग्रुप के पकड़ने से हमारे तकरीबन अभी तक 8 FIRs जो हैं वो हल हो चुके हैं। शेखपुरा तुलेल के लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इलाके में तमाम राब्ता सड़कों से बर्फ हटाई जाए। मकामी लोगों का कहना था कि सिर्फ शेखपुरा सेहत मरकज तक सड़क से बर्फ हटाई गई, जबकि अंदरूनी सड़कों से बर्फ नहीं हटाई गई। लोगों का मजीद कहना था कि इलाके में बिजली का जनरेटर भी पिछले कुछ रोज से खराब है, जिस वजह से आबादी का एक वसी हिस्सा बिजली से है। लोगों ने इंतजामिया से इन मसाइल की जानिब तवज्जो देने की अपील की। कुंजर के हरदपुरा इलाके के अवाम ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर में इंफ्रास्ट्रक्चर और डॉक्टरों की कमी की शिकायत की है। लोगों की शिकायत को देखते हुए डीडीसी कुंजर, बीएमओ कुंजर और डीडीसी सरपंचों और इलाके के दीगर लोगों ने अस्पताल का दौरा किया। डीडीसी कुंजर नज़ीर अहमद ने इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का एतराफ़ किया। उन्होंने फिलहाल मौके पर ही अपने फंड से 10 लाख, जबकि बीडीसी और सरपंच ने 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया, जिस पर लोगों ने खुशी का इजहार किया। लोगों ने हरदपुरा के प्राइमरी हेल्थ सेंटर की कमी को पूरा किया जाए। ये एक्सरे मशीन है, एक्सरे टेक्नीशियन है माशाल्लाह, लेकिन स्टेलाइजर नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी देखिए, केरोसिन नहीं है। अगर आज से 5 साल पहले यहाँ पे डिलीवरीज होती थी
हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, हमें जेवीसी जाना नहीं पड़ता है। आज हमें कहीं और अस्पताल में जाना पड़ता है, हालांकि बेहतर होना चाहिए, बेहतर नहीं वर्स्ट हो गया है। ये ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर साहिबा को यहाँ पे 1-2 दिन रहना चाहिए या 1 दिन कम से कम आना चाहिए। हमारी लेडीज़ यहाँ पे जिसके लिए आज जच्चा और बच्चा के लिए गवर्नमेंट ने इतने अरबों और खरबों खर्च करते हैं, आप देखिए हमारी लेडीज़ को आज भी कुंसर जाना पड़ता है, टंगमरग जाना पड़ता है। खर तो बोला कि ये डिमांड है, जो भी पोस्ट्स यहाँ पे सैंक्शन है उनको यहाँ भी फैसिलिटीज आज सेंट्रल गवर्नमेंट देती है वो हमारी यहाँ होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा, यहाँ छीन के ये ले जाएंगे ऐसे ही, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पे या पॉलिटिकल बुनियादों पे, वी विल गो अहेड, वी विल अप्रोच द कोर्ट। सो यहाँ जो इस वक्त बिल्डिंग है ये बिल्कुल खस्ता हाल है। यहाँ ऊपर कबूतर है, पेशेंट को ठीक होने के बजाय यहाँ इन्फेक्शन होने का खतरा है। इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, हर एक सेक्शन है, गायनी है, एक्सरे है, डेंटल है, लैब है, डॉक्टर्स अवेलेबल है, मगर बिल्डिंग की प्रॉब्लम है, इन चीज़ों की प्रॉब्लम जिनसे बीमारों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और हम जो कर सकते हैं उसके लिए हमने 20 लाख रुपया यहाँ वागुजार किए हैं, मैंने 10 लाख रुपये दिए हैं, बीडीसी साहब ने 5 लाख रुपए दे दिए हैं और हमारे सरपंच साहब ने इसने भी 5 लाख रुपए दे दिए। आने वाले वक्त में हम पूरी कोशिश करेंगे जो भी यहाँ के मुश्किलात हैं वो दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। जिला गांदरबल के इलाके डब और उसके मुल्हिका देहात को नए कायम किए गए गैर फाल रिसीविंग स्टेशन की वजह से बिजली के शदीद बहरान का सामना है। गुंजान आबाद इलाका बशमूल नारायण बाग वकोरा ब्लॉक के रिसीविंग स्टेशन से बिजली की सप्लाई की जा रही जो तलब के लिए नाकाफी है। नामालूम वजूहात की बिना पर बिजली स्टेशन को फाल नहीं किया गया। लोगों का कहना है कि चंद हफ्ते कबल मुतल्लिका इंजीनियर ने बैक टू विलेज प्रोग्राम के दौरान उसे फाल करने की यकीन दहानी कराई थी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये रिसीविंग स्टेशन पिछले तकरीबन 3 सालों से बना हुआ है, लेकिन अभी तक डिपार्टमेंट इसको यहाँ पर इसकी सप्लाई नहीं दे रहा है इलाके को। इलाका जो है रबतार, डब, शालहार, नारायण बाग, सारा इलाका इस वक्त गुफ अंधेरे में बैठा हुआ है। बैक टू विलेज में कहाँ हैं, हम उस वक्त उसी वहाँ पे थे। उन्होंने 1 हफ्ते में इसको चालू करेंगे, लेकिन तब से लेकर आज तक 15 दिन हो गए हैं, अभी तक ये चालू नहीं हुआ है। यहाँ पर ना कोई स्टाफ है, ना कोई इनका कोई टेक्निकल टीम है, ऐसे ही बिल्डिंग छोड़ के रखी हैं। ट्रांसफार्मर भी लगे हुए हैं अच्छी तरह से, सभी इलाकों में इन्होंने लाइन भी बिछाई हैं, लेकिन ये पता नहीं लगता क्योंकि ये इसको चालू क्यों नहीं कर रहे हैं। का ना शेड्यूल का पता है ना कुछ है, तारें गिर रही है, पोलों के बिजली पोल के बजाय दरख्तों पे तारें लगी हुई है। और ये रिसीविंग स्टेशन 2-3 साल से बन रहा है। अभी एक लोग कह रहे हैं कि ये कंप्लीट है, कंप्लीट इधर ना कोई स्टाफ है ना। अभी हमारा इलाका बहुत अंधेरे में है, बिजली का इन सर्दियों के दौरान हमको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इनसे मौदबाना गुजारिश है कि इसको जल्द से जल्द चालू करें। वजारत खारजा ने साल 2021-22 के दौरान शहरियों को आला मयारी पासपोर्ट सर्विस फराहम करने के लिए एक खुसूसी जुमरे के तहत रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जम्मू को बेहतरीन कारकर्दगी का अवार्ड दिया है। जम्मू के रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर रशीद कुमार शिल्क ने अपने अमले को इस बात का क्रेडिट दिया। उनका कहना है कि अमले ने मुख्तलिफ औकात में काफ़ी मेहनत की, जिसकी बदौलत उन्हें ये अवार्ड हासिल। पेश एक रिपोर्ट। ये है रीजनल पासपोर्ट अफसर जम्मू रशीद कुमार शेख। इन्हें वजारत खारजा की तरफ से शहरियों को पासपोर्ट सर्विस की फराहमी में आला मयार कायम करने के लिए खुसूसी जुमरे के तहत ये बेहतरीन कारकर्दगी का अवार्ड मिला है। उन्होंने ये अवार्ड नई दिल्ली में मुनक्किदा एक मेगा इवेंट के दौरान हासिल किया। रशीद कुमार शिल का कहना है कि पासपोर्ट अवार्ड हासिल करना काबिल फख्र होने के साथ साथ एक हौसला अफजाई भी है। उन्होंने कहा कि ये जम्मू पासपोर्ट ऑफिस के अमले की मेहनत, लगन और गैर मामूली शहरी नवाज खिदमत हमने हमेशा से हमारे प्रयास रहा जो वेयर पीपल आर फेसिंग प्रॉब्लम and try to identify the problem areas and try to simplify the procedures. Further, what we have done is family token. Family token is a token. Sometimes we observed that different family members are having different time of having their application processed in any day or on a different day. Or then we have allowed them to come together and to have their application processed at one point of time. Especially who are hailing from the rural areas. Sometimes they used to face huge problem, used to come early in the morning where they are having, then we have accommodated them at whenever they have come.
आरपीओ जम्मू ने बताया कि उन्होंने एक साल के अंदर 72,000 से ज्यादा पासपोर्ट दरख्वास्तों का दावा किया है। उन्होंने कहा कि उनका अमला हफ्ते के आखिर में भी इस मकसद के साथ काम कर रहा है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि दरख्वास्त का कोई इल्तिवा बाकी न रहे और दरख्वास्त गुजारों को बगैर किसी ताखीर के पासपोर्ट पहुंचाया जा सके। In addition to that, more than 8,000 PCC also, police clearance certificates. There are other services, police clearance certificate and NORI, no obligation return to India, and surrender certificate. There are many other services that we also citizens who are coming to us, not only passport. What we are doing, we're trying to convince the ministry to simplify the procedures. Earlier in police verification, there are 9 points. Now it has come down to only 6 points. Earlier, visiting house of the applicant was mandatory for the police. Now it has become gone away. Visiting house is not a mandatory. Earlier, sometime police visits house and applicant was out of the home or out of the town. Due to that reason, sometime police used to give a adverse report. दूसरी तरफ आम लोग भी आरपीओ जम्मू की तरफ से दी जाने वाली खिदमात पर काफी लोगों का कहना है कि जम्मू पासपोर्ट ऑफिस इस अवार्ड का मुस्तहक है क्योंकि ये पासपोर्ट की डिलीवरी खिदमात में बहुत तेजी से काम करता है। मतलब कोई दिक्कत नहीं आती है किसी भी, मतलब जो भी आज बंदा आ जाता है अपने काम के लिए तो काम निकाल कर ही चला जाता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। अभी तक तो हमने यही फील किया कि बड़ी अच्छी सुविधा है यहाँ, मतलब इस सेंटर में। नहीं मतलब ठीक है, मतलब जब आते हैं उसी टाइम मैं जल्दी हो जाता है काम। आप क्या करने गए थे वहाँ पे? मैं अपनी सिस्टर का वो करवाने गया था, ऑब्जेक्शन के लिए बता रहे थे कि ये करवाना था, फिर उन्होंने बताया कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर के मुताबिक आइंदा दिनों में डिलीवरी खिदमात में मजीद बेहतरी लाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने आम लोगों पर भी जोर दिया कि अगर पासपोर्ट की दरख्वास्तों को क्लियर कराने में किसी किस्म की परेशानी का सामना हो रहा हो तो वो जाती तौर पर या सोशल मीडिया के जरिए उनसे राब्ता कायम कर सकते हैं ताकि उनके मसले का जल्द इजाला किया जा सके। उम्मीद है कि दीगर सरकारी महकमे और ऑफिस आवाम की खिदमत करने के लिए लगन से काम करेंगे और आवाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। कश्मीर अपनी पार्टी के यूथ विंग ने आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर किश्तवाड़ में पीडीडी डिपार्टमेंट के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। उनका कहना है कि जिला किश्तवाड़ में बिजली की काफ़ी कटौती की जा रही है जिसकी वजह से आम आदमी को काफ़ी परेशानी का सामना है। मुजाहिरीन ने अपील की है कि हुकूमत खास तौर पर जिला किश्तवाड़ में बिजली की कटौती बंद करे वरना आने वाले दिनों में वो दोबारा सड़कों पर आएंगे। कभी इनके पोल गिर जाते हैं, कभी इनकी तारें गिर जाती हैं, कभी ये बोलते हैं कि जेसीबी वाले ने कहीं पे गिरा दिया। निजाम बिल्कुल धर्म भरम है। हम आज इन लोगों को ये चेतावनी देना चाह रहे हैं कि अब किश्तवाड़ की आम आवाम इस चीज से बहुत तंग है और किश्तवाड़ की आम आवाम इस चीज के लिए बाहर निकल के सड़कों पे आए। इससे पहले आप बिजली के निजाम को कम से कम किश्तवाड़ में ठीक कीजिए क्योंकि किश्तवाड़ की बिजली पे सबसे पहला हक किश्तवाड़ियों का है। डायरेक्टर सोशल फॉरेस्ट्री रोशन जगी का कहना है कि महकमा जंगलात रकबे को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम उठा रहा है जबकि लोगों को मुख्तलिफ अक़साम के पौधे फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने पहलगाम में सोशल फॉरेस्ट्री की जानिब से एक मेगा प्लांटेशन मुहिम का इफ्तिताह करने के दौरान कहा कि जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ सभी होनी चाहिए। शजरकारी मुहिम में डीएफओ सोशल फॉरेस्ट्री शमा रूही, तहसीलदार पहलगाम डॉक्टर मोहम्मद हुसैन के अलावा जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से मुंसलिक अफराद व स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पहलगाम के एक बड़े रकबे पर शजरकारी की गई और लोगों के लिए माहौलियाती बेदारी का पैगाम भी आम किया गया। पूरे सारे जितने भी 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वैली के, इसमें शुरू किया है ड्राइव, जो ग्रीन ड्राइव है हमारा। परसों हम लोग पुलवामा में थे, कल गुलमर्ग में, आज यहाँ पहलगाम में और इसके बाद कुपवाड़ा और हमारा पहलगाम का आगे प्रोग्राम है। आप जानते हैं हमारा ये विंटर प्लांटेशन ड्राइव है। जम्मू में तो मानसून में रहता है लेकिन यहाँ वैली में हम लोग सर्दियों में करते हैं और इस साल हमारा कश्मीर वैली के अंदर कोई 15 लाख के लगभग हमारा टारगेट रहेगा और 2 से 3 लाख तक हम लोगों को प्लांट देंगे। इसमें खास बात ये रहेगी कि हमने इस बार पॉपुलर का जो खास वैरायटी है, कॉलोनल वैरायटी फास्ट ग्रोइंग,
जी वो लोगों को देने का प्लान है, जिससे लोगों को अच्छा इकोनॉमिकल रिटर्न्स अच्छे आए। और दूसरा जो एग्रो फॉरेस्ट्री का हमारा प्रोग्राम है उसको और स्ट्रेंथन हम लोग करें। श्रीनगर की एक 15 साल लड़की मुक़द्दस ज़ोहरा का ख्वाब है कि वो स्क्वायर मार्शल आर्ट्स में एक बैनुल-अक़वामी एथलीट बनकर हिंदुस्तान के लिए तलाई तमगा जीते और पूरे मुल्क का नाम रोशन करे। मुक़द्दस ज़ोहरा को अपने कम उम्री में ही स्क्वायर मार्शल आर्ट्स का जुनून था और वो बड़े टूर्नामेंट्स में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने का ख्वाब देखती थी। मुक़द्दस ने कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर कई गोल्ड मेडल जीते हैं, लेकिन इस खेल में मज़ीद बुलंदियों को सर करना चाहती हैं। श्रीनगर के ग्रीन वैली स्कूल से अपनी तालीम हासिल करने वाली मुक़द्दस का कहना है कि वो शुरू से ही बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों को करीब से देख रही थी और एक दिन उन जैसे अपने मुल्क के लिए सोने का तमगा जीतने का ख्वाब देख आंखों में सजाए हुए हैं। मुक़द्दस ने गोवा में कौमी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। उसने नेपाल में सेबल की चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल भी जीता था और रियासती सतह पर भी कई तमगे जीते थे। मुक़द्दस के घर वाले उसकी कामयाबी से बहुत खुशी और फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। जो ज़्यादा ड्रग्स लेते हैं उससे उनकी ज़िंदगी ख़राब नहीं हो जाती, उनकी पेरेंट्स की, जो उनकी वजह से सबकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। ना वो पढ़ पाते हैं, ना वो कुछ कर पाते हैं। इससे अच्छा है कि वो स्पोर्ट्स में जाए। और पेरेंट्स का मेरा ये सपोर्ट रहा कि मुझे पापा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। पहला जब मेरा नेशनल था तो मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट किया, इवन दादू ने भी बहुत बोला। जब मैं अपनी कंट्री को, इंडिया को रिप्रेजेंट कर, मैं प्राउड फील कर रहा हूँ कि अभी ये छोटी बच्ची है, 9th में ही है, तो इतनी गोल्ड लाए हैं इसने। मतलब नेपाल गई है, गोवा गई है, बहुत सारी जगहों पे गई है बचपन से ही, तो प्राउड ऑटोमेटिकली फील तो होगा ही एक बाप को। जैसे लड़के जाते हैं खेलने के लिए, बाहर जाते हैं, तो लड़कियों को भी देना चाहिए। नज़र रखना अलग एक चीज़ है बच्चों पे, और ये मतलब वो अलग एक चीज़ है। हमको घर बैठ के इनको बंद घर के कमरे में बंद करके रखना वो अच्छी बात नहीं है। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं मुक़द्दस की मम्मा हूँ। जो इसके फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं या नेबर्स हैं, सब मुझे बोलते हैं ये मुक़द्दस ज़हरा की मम्मा वो आ रही है, इसीलिए मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। शुक्रगुज़ार हूँ उसके कोच सर की, इरफान सर की, कि उसने इसको यहाँ इस मुकाम पे लाया। ज़्यादातर रोल जो रहा वो मेरे हस्बैंड का है, उसने बहुत सपोर्ट किया मुक़द्दस ज़हरा को। तरक्याती कमिश्नर डोडा विशेष पाल महाजन ने डोडा जिले की 50 गर्ल्स ट्रैकर्स की टीम को हरी झंडी दिखाई, जो 21 नवंबर से 27 नवंबर तक बेस कैंप सरतिंगली भद्रवा में मुनक्किद होने वाली है। इस तकरीब का इनकाद यूथ सर्विसेज और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट डोडा ने किया है। डीसी ने ट्रैकर्स के साथ बातचीत करते हुए उनसे कहा कि वो फितरत के बेहतरीन मनाजर को देखें और जंगलात, पहाड़ियों और मरग़ज़ारों की खूबसूरती को देखें। उन्होंने उन्हें ट्रैकिंग के दौरान नज़्म व ज़ब्त को यकीनी बनाने की हिदायत दी। पहली बार नहीं जा रही हूँ, मैं पहले भी गई थी पिछले साल, तो अभी सेकंड टाइम जा रही हूँ। बार भी हमने वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, सिंगिंग हुई थी वहाँ पे, डांसिंग हुई थी, फायर कैंप वगैरह सब कुछ हुआ था वहाँ से। हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारे फॉरेस्ट कितने मतलब अच्छे हैं, नेचर ब्यूटी, मतलब आगे पीछे तो हम घूमते नहीं, लेकिन ट्रैकिंग की वजह से हम घूमने जाते हैं, मतलब देखते हैं कि कितने अच्छे और शाम को वापस आके कैंप फायर वगैरह होता है। फिर हम ट्रैकिंग करने जाते हैं 7 किलोमीटर, हम यहाँ से जाते हैं 7 किलोमीटर, हम वहाँ से वापस आ जाते हैं। फिर शाम को फायर कैंप होता है, फायर कैंप में हमारा डांस होता है, सिंगिंग होता है, और सबको जान पहचान अच्छी तरह हो जाती है हमारी उनके साथ। और सर हम थैंक्स कहना चाहते हैं कि हमें मौका मिल रहा है। ये हमने इनका 5 दिन का है लड़कियों का, 1 दिन आना 1 दिन जाना और 5 दिन वहाँ स्टे करेंगे। हमने इनका किया है सरतंगल में जो बेस कैंप है इनका, वहाँ से हमने रूट किए हैं डिवाइड। एक साइड से लगभग डेली ये 7 किलोमीटर चलेंगे और 7 किलोमीटर वापस आएंगे, अप्रॉक्सीमेट 15 किलोमीटर डेली चलेंगे। वक्त है एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा सागर दत्तात्रेय ने आज टाउन हॉल कुपवाड़ा में एक रोजगार मेले का इफ्तिताह किया। डीडीसी कुपवाड़ा ने कहा कि जिले में मिशन मोड की बुनियाद पर खुद रोजगार पैदा करने के प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रोजगार की फराहमी हुकूमत हाथ में शामिल है और जिला इंतजामिया आमदनी पैदा करने वाले यूनिट्स कायम करके प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत जिले के बेरोजगार नौजवानों को आगे आने और इससे मुस्तफिद होने की तरगीब देने के लिए पुरअज़्म है। कि पीएमईजीपी स्कीम में तकरीबन 35% के आसपास सब्सिडी मिलती है कोई भी यूनिट लगाने के लिए। तकरीबन 85 to 100 ऐसे अलग अलग हमने ट्रेड्स निकाले हुए हैं जिनमें यूनिट्स आप शुरू कर सकते हैं, चाहे वो टूरिज्म के हवाले से तो हो, एग्री प्रोसेसिंग के हवाले से हो, हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम के हवाले से हो, जनरल जो हमारे कमर्शियल के हवाले से हो। तो इन सारे 85 ट्रेड्स के DPRs हमने रफली जो है वो डिपार्टमेंट की वसादत से बनाए हुए हैं और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो 8000 बच्चे जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है बैक टू विलेज 4 में, इनमें से कम 6-7 हज़ार बच्चों को हम लोग एक्चुअली लोन सैंक्शंस करवा के देते। जिला इंतजामिया कुपवाड़ा ने एक डिटेल सर्कुलर निकाला हुआ है जिसमें RBI की गाइडलाइंस क्लियर लिखी हुई है कि 10 लाख तक के लोन के लिए कोई भी कोलैटरल सिक्योरिटी या गारंटर की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी जो है वो ब्रांच इसके खिलाफ जो है वो इसको फॉलो नहीं करती है RBI की गाइडलाइंस को, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आरएसपुरा के सरहदी गांव अब्दुलिया में सड़क के नगडिमाइजेशन का काम शुरू हुआ। इस मौके पर मकामी लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। BDC के चेयरमैन तरसीम कुमार शर्मा ने कहा कि गांव को जाने वाली लिंक रोड की हालत काफ़ी अरसे से खस्ता है। लोगों का मुतालबा था कि इस सड़क पर तारकोल डाला जाए, जिसकी वजह से आज ये अहम काम मुश्तरका तौर पर शुरू किया गया है। अब्दुलिया गांव में ये लिंक जो था बड़ा इसकी बहुत ज़्यादा खस्ता हालत थी, खासकर बरसात में जहां पानी जमा हो जाता था और लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत, बहुत ज़्यादा परेशानी थी। तो आज यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग का काम जो है किया है। ये अब्दुलिया आप सब जानते हैं कि ये एक्सट्रीम बॉर्डर है, यहाँ पे हमारी पोस्ट भी है और अब्दुलिया गांव जो है ये मिल के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। कुपवाड़ा में एक निजी स्कूल में तालीमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में मुकर्रीरीन ने मनशियात के बढ़ते रुझान और उससे नौजवानों को दूर रखने पर जोर दिया। मुकर्रीरीन ने कहा कि मनशियात से हमारी नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। इस मौके पर तलबा और तालिबात ने रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए। मुकर्रीरीन ने वालिदैन पर जोर दिया कि वो अपने बच्चों को मनशियात जैसी लानत से दूर रखें ताकि बेहतर समाज की तामीर हो सके। और रंगारंग प्रोग्राम बच्चों ने पेश किए, अखलाकी, अदबी, इल्मी, और इस हवाले से हमने पेरेंट्स को यहाँ पर मदऊ किया था ताकि हम इनको मनशियात के हवाले से भी अवेयर करें, इन्हें इसकी जानकारी दें कि अपने बच्चों को इन जैसी वबाओं से बचाए रखें। तो इसी हवाले से हमने यहाँ पर इस प्रोग्राम का एहतमाम किया है। तो हम यही चाहते हैं कि तमाम पेरेंट्स जो हैं, वालिदीन हैं, वो अपने बच्चों पर निगरानी रखें जिस तरह से पास्ट में हुआ करता था। वालिदीन अपने बच्चों को अपने सामने तरह तरह की तालीम देते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें बहुत ही इनक़ता आ रहा है कि पेरेंट्स बहुत ही लय तो लाल से काम लेकर अपने बच्चों की तरफ उस तरह से नहीं दे। इस वक्त स्कूलों पर भी ये जिम्मेदारी आयद होते हैं कि वो इस चीज़ को उजागर करेंगे। पेरेंट्स अपना वज़ीर-ए-आज़म का ख्वाब है कि मुल्क के नौजवान नौकरी की तलाश के बजाय नए हुनर सीखें और रोजगार पैदा करने वाले बने। PM के मशवरे पर अमल करके जम्मू की मानसी कई नौजवानों को नई स्किल्स सिखाकर उन्हें अपने कदमों पर खड़ा करने में कामयाब बना रही है। आप देखिए खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। ये जम्मू की मानसी गुफा है। पिछले कई सालों से नौजवानों को फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग और इस तरह के कई स्किल्स की ट्रेनिंग देकर अपने पैरों पर खड़ा किया है।
मानसी का कहना है कि मौजूदा हुकूमत जिस स्किल डेवलपमेंट पर जोर दे रही है और अब नौजवान भी समझ गए हैं कि वो सिर्फ सरकारी मुलाजमतों पर इन्हिसार नहीं कर सकते। नौजवान हुनर सीख कर खुद रोजगार हासिल कर सकते हैं और दूसरों को भी रोजगार देने के काबिल बन सकते हैं। कम से कम 800 से 1000 लड़कियां हैं जो ऑलरेडी यहाँ से ट्रेनिंग पाके जा चुकी हैं और मोटिव यही है कि वो सेल्फ रिलायंट बने, अपने पैरों पे खड़ी हों। कईयों ने तो अपना अपना काम खोल लिया है, जो काम नहीं खोल पाए कर रही हैं। जितने भी लीडिंग ब्रांड्स हैं जम्मू के, चाहे वो डिज़ाइनर्स हैं, चाहे वो शोरूम्स हैं, वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत अच्छे से वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं एज फैशन डिज़ाइनर्स, एज इंटीरियर डिज़ाइनर्स। स्किल्स ना सिर्फ बच्चों को भारत में, भारत के बाहर हर जगह काम आते हैं, बिकॉज ये स्किल हमेशा के लिए उन्होंने सीख लिया होता है। यहाँ ट्रेनिंग लेने वाले नौजवानों का मानना है कि मौजूदा हालात के पेश नज़र हर किसी को स्पेशल स्किल ट्रेनिंग लेनी चाहिए। नौजवानों का कहना है कि वो यहाँ नए डिजाइन की ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि टेक्नोलॉजी के दौर में मुकाबला करके मार्केट में अपने लिए नया मकाम बना सके। इतनी सारी जॉब भी ना, तो वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आता है, तो हम खुद अपना ये सब कुछ सीख के हम अपना कुछ भी काम कर सकते हैं, सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं, हम किसी को स्किल सिखा सकते हैं। जो फैशन डिज़ाइनिंग स्कूल है, यहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ डिफरेंट। जैसे मार्केट में कोई भी न्यू फैशन आ रहा है, कोई भी न्यू ट्रेंड आ रहा है, यहाँ हमें सब कुछ सिखा रहे हैं। सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए हमें सब कुछ सिखाया जा रहा है यहाँ पे। जॉब तो सबको नहीं मिल सकती है ना, तो अगर अपने हाथ में कोई स्किल हो तो हम कुछ भी काम कर सकते हैं, कुछ भी अपना कोई बुटीक खोल पाएंगे, कुछ बिजनेस कर पाएंगे, इससे हमें अर्न होगा और हम भी कुछ इन्वेस्टमेंट को हेल्प कर सकते हैं। ऐसे बहुत से कई लोग हैं जो मानसी गुप्ता के इस इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेने के बाद फैकल्टी के तौर पर काम कर रहे हैं और बहुत से नौजवान अपने पैरों पर खड़ा हुए हैं। इस इंस्टीट्यूट में मैं पहले तो 2014 से पास आउट हूँ। अब यहाँ पर अपना फैकल्टी एज ए फैकल्टी जॉब कर रहा हूँ। साइड बाय साइड मेरा बिजनेस भी है, बुटीक है, खुद अपना काम किया है और अब आगे से पढ़ा भी रहे हैं। मानसी गुप्ता को उनके बेहतरीन कामों के लिए बड़े प्लेटफॉर्म पर एजाज से नवाजा गया है। मानसी ने अब तक लातादाद फैशन शोज में भी शिरकत की है कि जम्मू के नौजवानों को भी आगे बढ़ना चाहिए और अपने लिए रोजगार के मौके पैदा करना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर भी मुल्क की तरक्की में नुमाया हिस्सेदार बन सके। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये हमेशा कोशिश रही है कि युवाओं को ये समझाया जाए कि अब उनको जॉब लेने वाला नहीं बल्कि जॉब देने वाला बनना होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। और मानसी इसी मशाल को आगे लेकर चल पड़ी हैं, जिनका लक्ष्य है ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को सेल्फ सफिशिएंट बनाना। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।